हरे कृष्णा परमाश, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज. Humble तो आज हमारा obeisances. परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, हमारे गुरु माँ जी के सन्यासी शिष्यों में से एक परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज उपस्थित है. तो आज रविवार है और प्राय रविवार के टॉक्स अंग्रेजी में होते हैं, तो महाराज अंग्रेजी में टॉक देंगे, लेकिन आप सभी की अनुकूलता के लिए इसे ट्रांसलेट भी किया जाएगा. तो आप सभी से अनुरोध है कि अब नाम जप को विराम देकर आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए. एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर होलीनेस श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज टू काइंडली बिगिन टुडेस टॉक. महाराज, हरे कृष्ण. Thank you, Padmamali Prabhu. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So good morning to everyone in the Japa Mandir today, Zoom Mandir. My special gratitude to His Holiness Lokanath Swami Maharaj and His Grace Padmamali Prabhu for giving me this opportunity to speak something about the holy names. Do we have a translator with us this morning? Parthasarthi Prabhu, are you there? Yes, Maharaj. Hare Krishna. Okay. Arkanjan Bhakta Please go Prabhu ahead. is there? What to do? Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Oh, Hare Krishna. So Param Pujya Sri Krishna Chaitanya Maharaj सर्वप्रथम गुरु महाराज का और पद्ममाली प्रभु का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज हरि नाम के ऊपर कुछ कहने के लिए महाराज को आमंत्रित किया गया है. And I'd like to express my gratitude to all the devotees for joining today. और जिन भी भक्तों ने आज यह इस जपा टॉक में सम्मिलित हुए हैं, महाराज उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं. So today I would like to discuss japa affirmations. तो आज हम जप अफर्मेशन के विषय में कुछ चर्चा करेंगे. You can find these on Mahatma Prabhu's website. I'm just putting the link in the Zoom. तो यह महात्मा प्रभु की जो वेबसाइट है
वहां पर यह उपलब्ध है जप के विषय में जो आज हम चर्चा करेंगे वो। Uh-huh. Okay. So, chat. Yeah, I'm putting in the Zoom chat. And the word affirmation means to create a mood and mindset. यह जो शब्द है अफर्मेशन, इसका अर्थ है कि हमें एक भाव और मानसिकता जो है वो उत्पन्न करना जप के लिए। So just like when we're preparing a field for planting the crops, we plow the field to make the soil very soft and fertile. तो जब हम कृषि करते हैं तो उससे पहले हम उस खेत को जोतते हैं, जिससे हल के द्वारा जब खेत को जोता जाता है तो जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो मुलायम हो जाती है। So these japa affirmations, they help us to make our heart fertile to receive the holy name. उसी प्रकार यह जो जप अफर्मेशन है, इसके द्वारा यह होता है कि हमारा जो हृदय है वो एक बंजर भूमि के समान है, तो यह उपजाऊ होता है, उपजाऊ भूमि के समान, जिससे हम नाम प्रभु को यहाँ पर हम उनकी सेवा कर सकें, उसके लिए ये उपजाऊ बन जाता है। So these japa meditations, affirmations are for our meditation, and also we can hear recordings of them. तो यह जो जपा अफर्मेशन है, ये वास्तव में हमारे चिंतन के लिए भी है, और हम इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको हम सुन भी सकते हैं और मनन कर सकते हैं। And they said the goal, our aim, what we should try for in our mindset for chanting japa. और इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम किस उद्देश्य से, किस भाव के साथ में जप कर रहे हैं, वो भी यहाँ सेट होता है। So there are 20 japa affirmations. तो इस प्रकार के कुल 20 जपा अफर्मेशंस हैं जो अवेलेबल हैं, And I will share 5 of them today. और उन 20 में से आज हम 5 के विषय में चर्चा करेंगे। So this can be a series of japa affirmations. We'll have 4-part series, and this is today part 1, 5 japa affirmations. तो इस प्रकार से ये एक सीरीज होगी जिसमें हम आज 5 जपा अफर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और इस प्रकार 4 अलग अलग सेशन में कुल हम 20 पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। Jai ho, jai ho. So the first japa affirmation is, I happily and enthusiastically welcome the holy names every japa session. तो जो प्रथम एफर्मेशन है वह है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक और अत्यंत उत्साह के साथ प्रत्येक जप सत्र के लिए श्री नाम प्रभु का स्वागत करता हूँ। So Srila Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण का जप कीजिए तथा प्रसन्न रहिए। So this is the instruction from Srila Prabhupada, chant and be happy. तो यह श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें एक निर्देश दिया गया है कि हम जप करें और प्रसन्न रहें। If we only chant but we're not happy, we're only getting 50% of the instructions. तो यदि हम केवल जप कर रहे हैं परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रभुपाद ने जो निर्देश दिया हम उसका केवल 50% ही पालन कर पा रहे हैं। So we should be happy when we chant. तो जब हम जप करते हैं तब हमें प्रसन्न भी रहना चाहिए। And we should also be enthusiastic. और हमें अत्यंत उत्साहमय अवस्था में रहना चाहिए। This is one of the
principles that Srila Rupa Goswami gives in the Nectar of Instruction, utsaha, enthusiasm. उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी जो निर्देश देते हैं उनमें से उत्साह पूर्वक भक्त को रहना चाहिए, ये भी एक विशेष निर्देश है उनका। Utsaha nischayatayat tatat karma pravartanat sangatyagat satoverte shadbhir bhaktir prasidati. So we should be enthusiastic, determined, and also patient. तो यह जो श्लोक उपदेशामृत से है, इसमें है कि ये 6 विधियां जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की भक्ति सुदृढ़ हो सकती है, तो उसमें है उसे उत्साह रखना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और एक दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए भक्त। We should be welcoming the holy name. Suswagatam, suswagatam, suswagatam. तो हमें श्री नाम प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। And this should be our standard every japa session. और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार करना है, हम जब भी जप करें, हर जप सत्र में हमारी यही भाव होना चाहिए कि हम श्री नाम प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। I happily and enthusiastically welcome the holy names every japa session. तो मैं हर जप सत्र में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक और अत्यंत उत्साह पूर्वक श्री नाम प्रभु का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता हूँ। Okay, number 2. I easily chant my prescribed number of rounds with focus and attention. दूसरा है कि मैं जो मेरा निश्चित संख्या का जप है वह बहुत एकाग्रता के साथ में और ध्यान पूर्वक उनको अत्यंत आसानी से कर सकता हूँ। So asan means easily. It's not difficult for us. It just easily happens. तो यह जो नाम जप है उसको कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत सरलता पूर्वक इसे संपन्न किया जा सकता है। So this is our goal, that every day our japa should be easy. तो यह भी एक लक्ष्य हो सकता है कि प्रत्येक दिवस जो हम जप करते हैं वह जप सत्र बहुत आसान होना चाहिए, उसको बहुत कठिन नहीं बनाना चाहिए। How it becomes easy? तो प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार इसको आसान बना सकते हैं। When we become advanced in devotional service, we come to the stage of ruchi, nam ruchi. We get a taste for chanting, and then the chanting becomes more easy. तो इसका उत्तर है कि जब हम आध्यात्मिक रूप में उन्नति करते हैं और जब श्री नाम में हमारी रुचि उत्पन्न होती है, तो उस रुचि के कारण जब हमें उसका स्वाद आता है, जब हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, तब यह नाम जप हमारे लिए अत्यंत आसान हो सकता है। So we should come to that platform of nishta, being fixed, and then beyond that platform, ruchi, getting some taste for the holy name. तो सर्वप्रथम हमें निष्ठा के स्तर पर आना होगा और उसके पश्चात हम रुचि के स्तर तक पहुंच सकते हैं, जहां हमें नाम में रस आएगा। So what is easy? तो क्या आसान है? Chanting our prescribed number of rounds. तो हमारा जो निश्चित संख्या का जप है उसे संपन्न करना यह अत्यंत सरल है। 16 rounds minimum for initiated devotees. जो दीक्षित भक्त है उनके लिए कम से कम 16 माला का जप, ये हमारी कम से कम इतना निश्चित संख्या है। And personally, from my own experience, I can share that sometimes, kabhi, when I finish my 16 rounds, I feel disappointed. Oh no, no more chanting. That's it. Finish the 16 rounds. Now I have to go and do something else.
that is a good feeling. We should be disappointed when we chant our 16 rounds and it's finished. So then we have to go and do some other seva. We should desire to chant more and more. तो महाराज बता रहे हैं कि कभी, महाराज अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि कभी ऐसा होता है जब महाराज जब अपना 16 माला पूरी हो जाती है तो एक हृदय में निराशा या एक दुख होता है कि ओहो, अब मेरी 16 माला पूरी हो गई, अब मैं नाम जप को छोड़ करके मुझे कोई अन्य सेवा में लगना होगा। तो जब नाम ना करने के कारण इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो कि अब मैं नाम प्रभु की सेवा आज के लिए इतनी देर ही कर पाऊंगा, तो ये जो निराशा है ये भी अत्यंत प्रोत्साहित करने वाली होती है और ये इसलिए सराहनीय है ये भी। And we should easily chant with focus and attention. तो इस प्रकार हम अत्यंत ध्यान पूर्वक और एकाग्रता के साथ में इस प्रकार बहुत सरलता से हम अपना जो जप है वह पूरा कर सकते हैं। Jai ho, jai ho. I easily chant my prescribed number of rounds with focus and attention. तो मैं ध्यान पूर्वक और एकाग्रता के साथ अपना जो निश्चित संख्या का जप है उसे सरलता से, आसानी से मैं पूरा करूं। Yeah, we talk about dhyan purvak jap. Japa with full attention. तो हम कहते हैं कि जप का अर्थ है ध्यान पूर्वक जप, जिसमें हम एकाग्र होकर के केवल जप करें और कुछ ना करें उस समय। Jai ho, jai ho. Number 3, when I chant, I chant. तीसरा बड़ा विशेष है कि जब मैं जप करता हूं तब मैं केवल जप ही करता हूं। So when we chant, we should not multitask. तो जब हम जप करते हैं उस समय हमें एक साथ में कुछ बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए। We don't chant with our japamala in one hand and our phone in the other hand. तो ऐसा नहीं है कि हम एक हाथ में अपनी जपमाला रखें और दूसरे हाथ में हम फोन से कुछ करते रहें। And checking our messages. और हम अपने क्या संदेश हमें मिले हैं, मैसेज आए हैं, उनको देखते रहें। Or watching the YouTube videos. या हम YouTube पर वीडियो देखें उस समय। We should just sit and focus and chant. तो हमें एक स्थान पर बैठकर ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के और नाम जप करना चाहिए। Srila Bhaktivinoda Thakur, he used to lock himself in a small dark room, turn off the lights, and put his chadar over his head like this and just chant. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब जप करते थे तब वे स्वयं को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते और उस समय वहां अंधेरा कर देते और उसके पश्चात भी जो एक चादर होती थी, जैसा महाराज ने अभी दिखाया, वह चादर अपने ऊपर डाल के अपने मुंह को ढक के और इस प्रकार से वे जप करते थे। So there should be no distractions. तो इस प्रकार करने से हमारे जप में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। Door is locked. Darwaz band kar raha hai. Door is locked. Door is locked. तो जब इस प्रकार कोई जप करेगा तो वह अपना दरवाजा उसने बंद कर दिया है और अब वह अपना जप कर रहा है। Lights are off. जो बत्तियां हैं वे भी बुझा दी गई हैं। Chadar is over the face. और जो चद्दर है उससे अपने मुंह को ढक लिया है। Only chanting. और केवल जप कर रहे हैं उस समय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's all.
When I chant, I chant. तो वास्तव में यही सार है, हमें ये समझना चाहिए कि जब हम जप करते हैं तब हम जप ही करते हैं, केवल जप करते हैं उस समय। Hmm. So this is our goal. तो यह हमारा लक्ष्य है, इस प्रकार जप करना। ये हमारा लक्ष्य है। Next, I get to chant, I want to chant, I love to chant. तो जो अगला है वह है कि मैं जप करना प्रारंभ करता हूँ, मुझे जप करना अच्छा लगता है, मैं जप करना चाहता हूँ और मुझे जप करना अत्यंत प्रिय है। So I get to chant. That means chanting is an opportunity for us. तो मैं जप करना प्रारंभ कर रहा हूँ, इसका अर्थ है कि नाम जप हमारे लिए एक अवसर है, जब हम नाम सेवा कर सकते हैं नाम के द्वारा। Not everyone in the world gets the opportunity to chant. It's a rare opportunity. तो इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को यह सुअवसर प्राप्त नहीं होता है कि वह नाम जप करे। हमें यह विशेष सुअवसर प्राप्त हुआ है। Some people work 16 hours a day. कई व्यक्ति हैं जो कि एक दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं। Some students, they're studying for their board exams and they're so busy with their studies, it's hard for them to get time to chant. कई विद्यार्थी हैं जो जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और परीक्षा के लिए वे इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता कि वे जप करें। And some people, they never meet devotees. They don't get any information about chanting. और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको कभी भक्तों का संग प्राप्त ही नहीं होता, जिन्हें यह पता ही नहीं चलता कि नाम के विषय में कोई उन्हें बताता ही नहीं है। Some people are too sick to chant. कई व्यक्ति ऐसे हैं कि वे इतने बीमार हैं कि वे नाम जप भी नहीं कर सकते हैं। Some people during COVID, they were on the ventilator. The tube is down their throat. They can't speak anything. How can they chant? जैसा हमने देखा कोरोना के समय कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे थे, जो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, उन्हें कुछ चेतना ही नहीं थी, तो वे किस प्रकार जाप नाम जप कर सकते हैं। So this is our great opportunity. I get to chant. We can chant. तो हमें ये जो एक अत्यंत दुर्लभ एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा हमें नाम प्रभु के साथ हमारा कुछ संबंध हुआ और हम जप कर सकते हैं। So we should be grateful. तो इसके लिए हमें अत्यंत आभारी होना चाहिए। I want to chant. We should have the desire to chant. तो अब जब हमें नाम के विषय में पता चला है, तो अब हम नाम जप हमें करना चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मैं नाम जप करूं। And then I love to chant. We should just have so much enjoyment and appreciation and satisfaction from our chanting that we love to chant. We're so attracted, akarshan. और उसके पश्चात यह इस तरह है कि हमें जप से प्रेम हो जाए और हम बहुत प्रेम पूर्वक आनंद के साथ में हम जप करें। Japa should be our favorite activity. हम जितने भी कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसमें नाम जप हमारा सबसे आकर्षक या सबसे फेवरेट कार्य होना चाहिए। If you could do anything you want to do today, what would you do? तो आप यदि आज कुछ करना चाहते हैं, आपको यह करने का पूछे कि आज आप क्या करना चाहते हैं, तो आप उसमें से क्या करना पसंद करेंगे?
Okay, write in the chat. What would you do today if you could do anything you want? तो आई Write थिंक in the chat. In the chat. अगर यदि चैट में आप लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे यदि आज आपको कुछ करने के लिए कहा जाए. Not sure if the chat is enabled for everyone or not, Maharaj. Generally, it is disabled during the Japa talk time. Oh, okay. Okay, so what we should do is we should want to desire. If I can do anything all day, let me chant japa all day. Very well. So, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, devotees are writing now, कि यदि मुझे आज पूरे दिन कुछ करने को कहा जाए कि आप क्या करोगे, जो आप चाहे वो कर सकते हो, तो मैं बहुत पूरे दिन भर जप करना चाहूंगा. ये हमारा भाव होना चाहिए. Jai. I'm seeing chanting, chanting, japa, chanting and hearing, japa, chanting. Okay, good. Devotees have shared. This is the mood. If we have time, Srila Prabhupada said, don't waste time, chant Hare Krishna. तो यह जो भाव भक्त लोग लिख रहे हैं, मैं जप करना चाहूंगा, तो यह जो भाव है, यह अत्यंत सुंदर भाव है. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आपके पास समय, आपको यदि कुछ समय मिल रहा है, तो उस समय को आप बेकार मत जाने दीजिए, उस समय आप जप कीजिए. Jai Ho. I get to chant. I want to chant. I love to chant. तो मैं जप करता हूँ, मैं जप करना चाहता हूँ, और मुझे जप करना अत्यंत प्रिय है. Jai Ho, Jai Ho. Okay, next one. I treat the Maha Mantra as Radha and Krishna fully present in sound. और अगला है कि मैं इस महामंत्र को इस भाव में देखता हूं कि इस ये जो ध्वनि तरंग है, इसके अंदर, इस शब्द में राधा और कृष्ण पूर्ण रूप से वहां पर उपस्थित है. इस नाम में राधा और कृष्ण की पूर्ण उपस्थिति है, ऐसा मैं महसूस करता हूं. Abhina Abhina Tvam Nam Namino. That Krishna is non-different from his name. तो नाम और नामी ये दोनों अभिन्न है. इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपने नाम से कभी भी अलग नहीं है. So when we're chanting Krishna's names, we should know that he's dancing on our tongue. जब हम कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते हैं, तब हमें यह अनुभव होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारी जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं. And give our full attention to him. और हमें उन कृष्ण को, नाम के रूप में जो कृष्ण आए हैं, उन कृष्ण को हमारा पूरा ध्यान केवल उनकी ओर टिकाना चाहिए और कहीं नहीं ले जाना चाहिए. What would you do if today someone was knocking on your door? यदि आज कोई आपके दरवाजे को खटखटाए, तो हम क्या करेंगे? कोई आके यदि हमारा दरवाजा खटखटाता है तो And you open the door. तो हम उनके लिए दरवाजा खोलते हैं. And you see it's Krishna, Radha Krishna have come to see you. और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं कि सामने राधा और कृष्ण आपसे मिलने के लिए आज आए हैं, वे खड़े हैं. How would you treat them? तो आप किस प्रकार उनका स्वागत करेंगे? You have to treat the Maha Mantra the same way as if Radha and Krishna had personally come and knocked on your door and was with you personally. तो हम जिस भाव से उस समय राधा और कृष्ण जो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, उनका हम जैसे स्वागत करेंगे,
उसी प्रकार हमें इस महामंत्र का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार से इस नाम के रूप में राधा और कृष्ण हमारे समक्ष मिलने के लिए हमें आते हैं। Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Lord Chaitanya explains that the holy name is Sarva Shaktis, all the energy. Krishna, Radha is fully present in sound. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस नाम में संपूर्ण शक्ति है और स्वयं राधा और कृष्ण नाम में पूर्ण रूप से उपस्थित है। So we should treat the Mahamantra with so much love and affection and care. तो इस प्रकार हमें इस महामंत्र का अत्यंत प्रेम पूर्वक और बहुत प्रेम के साथ में इसका आस्वादन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। Have you heard of devotee care? क्या आपने डिवोटी केयर या भक्तों का जो केयर है उसके विषय में सुना है? What about Radha and Krishna care? तो भक्तों की देखभाल के विषय में तो हमने सुना, लेकिन राधा और कृष्ण की देखभाल किस प्रकार की जाए उसके विषय में क्या कहना है आपका? So we should treat Radha and Krishna with love and care. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम राधा और कृष्ण को अत्यंत प्रेम पूर्वक और स्नेह के साथ हम उनकी सेवा करें। I treat the Mahamantra as Radha and Krishna, fully present in sound. तो मैं इस महामंत्र में राधा और कृष्ण पूर्ण रूप से उपस्थित है ऐसा अनुभव करता हूं और मैं उनकी सेवा करता हूं। So this concludes our 5 japa affirmations. तो इस प्रकार ये जो जप की कुछ कुंजी हैं, कुछ अफर्मेशंस हैं, तो ये 5 आज हमने चर्चा की है यहाँ पर। I happily and enthusiastically welcome the holy names in every japa session. प्रथम है, मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक और उत्साह पूर्वक प्रत्येक जप सत्र में नाम का स्वागत करने के लिए तैयार रहता हूँ। I easily chant my prescribed number of rounds with focus and attention. दूसरा है कि मैं मेरा जो निश्चित संख्या का जो जप है उसको अत्यंत ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्त के साथ करने के लिए तैयार हूं और बहुत सरलता से मैं इसको पूरा कर सकता हूं। When I chant, I chant. तीसरा, जब मैं जप करता हूं तब मैं केवल जप करता हूं। I get to chant. I want to chant. I love to chant. अगला है, मैं जप करता हूं, मैं जप करना चाहता हूं और मुझे जप करना अत्यंत प्रिय है। I treat the Mahamantra as Radha and Krishna, fully present in sound. और अगला है कि मैं यह अनुभव करता हूं कि इस महामंत्र में राधा और कृष्ण पूर्ण रूप से उपस्थित है और इस प्रकार मैं उनका स्वागत करता हूं। Jai Ho. Shri Harinam Prabhu ki Jai. So I'd like to ask if there are any questions or comments from devotees. तो क्या किसी भक्त के कोई कुछ प्रश्न हो या आप कुछ टिप्पणी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Can you handle any hands that come at Akinchan Bhakt Prabhu? यस महाराज, यस महाराज। नासिक रोड से नीलेश दहीवाल जी,
आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dhanavad Pranam Prabhu. Hare Krishna प्रभु जी, when we chant, sometimes some thoughts coming in mind and distract focus, so how we can overcome? So there was a And farmer. Well, you can translate his question, please. सो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम जप करते हैं उस समय हमें कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं कि हम बहुत ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? One time there was a farmer, तो महाराज बता रहे हैं कि एक समय एक कृषक था, किसान था। he had a cow, उसके पास में एक गाय थी and he wanted the cow to stay next to one tree. और वह चाहता था कि वह जो गाय है वो एक पेड़ के पास खड़ी रहे। And the cow kept walking away, but whenever the cow would go away, the farmer would bring the cow back to the tree. And then the cow would walk away again. The farmer would bring the cow back to the tree. The cow would walk away again, and the farmer would bring the cow back to the tree. And the cow would walk away again, and the farmer would bring the cow back to the tree. And eventually, again and again and again, the cow learned, oh, this is my place. And the cow learned to stay at the tree. तो वह जो गाय है वह बार बार उस स्थान से चली, उस पेड़ के पास से चली जाती, और जब वो जाती तो वो किसान जाके उसको वापस लाके उस पेड़ के पास में बांध देता। फिर से वो चली जाती, फिर उसे लाया जाता। तो जब बार बार वो गाय जाती और किसान उसे वापस उस पेड़ के पास लाता, तो गाय को यह बात समझ में आई कि यह वास्तव में मेरा स्थान है जहां मुझे खड़ा रहना है। So the same way, our mind will go away from the Maha Mantra again and again. But every time we have to keep bringing the mind back. And eventually the mind will learn, oh, my place is at the lotus feet of Sri Nam Prabhu, the Hare Krishna Maha Mantra. तो इस प्रकार हमारा जो मन है वो इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन जब जब ये भागे हमें इसको पुनः लाना चाहिए और नाम के ऊपर टिकाना चाहिए, नाम के समीप लाना चाहिए। तो जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो हमारा मन यह समझ जाएगा कि वास्तव में मेरा जो स्थान है वह यही है कि मैं नाम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करूं और मैं नाम के समीप रहूं। Sri Harinam Prabhu ki jai. So does Yeah. that answer your question, Prabhu? Is that okay? Does that answer your question, Prabhu? Maharaj. Thank you. Thank Yes, you. Maharaj. I think he's muted now. That was Okay. wonderful. Yes. Yes. We have Mahadev Prabhu from Greater Noida. Okay, Prabhu. Yes, Prabhu ji, आपको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु महाराज। Hare Krishna. बहुत Prabhu. अच्छा क्लास था माता जी, सॉरी प्रभु जी। ये मेरा एक क्वेश्चन था महाराज कि जब हम उत्साह की बात करते हैं तो ये उत्साह जो है, जैसे साल भर हुआ 16 वाला जब करते हुए बड़े अच्छे से उत्साह में जब कर रहे हैं, लेकिन जब ये पीरियड बढ़ता है तो ये उत्साह कम होने लगता है। तो इस उत्साह को और अच्छे से बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? You want to translate So the would you like question? me to translate now? Yes, Maharaj. Yes, please. So he's Yeah. saying when we start chanting, we feel very enthusiastic to chant. And for the initial days, we remain very happy and the enthusiasm is very high to chant. But gradually, over a period of time, this decreases. So the question is, how can we remain or in the same enthusiasm for the whole life to chant with the same, enthusiasm? Well, thank you for your nice question. And one thing is, if we have the opportunity, we should chant in the association of enthusiastic devotees. तो महाराज कह रहे हैं कि यदि हमें यह अवसर मिले तो हमें जो उत्साही भक्त हैं उनके संग में जप करना चाहिए।
because the influence of the advanced devotees will help us advance. तो इससे क्या होगा कि जो ऐसे उत्साही और जो उच्च स्तर पर जो भक्त है, जो एडवांस डिवोटीज हैं, वो हमें एक प्रकार से एक प्रभावित करेंगे कि हम भी उत्साह पूर्वक जप करें. So this is association is key element. तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भक्तों का संग है वही एक कुंजी है इस उत्साह को बनाए रखने के लिए. Along with this key element, we can make some other adjustments to help us. तो भक्तों का संग तो एक कुंजी है ही, इसके साथ ही साथ हमें कुछ और भी ऐसा सामंजस्य बिठाना चाहिए और बातों का, जिससे हमारा जप में उत्साह बना रहे. Srila Prabhupada said we should take care of our health, then our sadhana, and then our seva. So health should also be a priority. Go to sleep early, keep good health. श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमारी साधना का ध्यान रखना चाहिए और हमारी सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए. तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए कि हम समय से सो जाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हम उत्साह पूर्वक जप कर सकते हैं. And these different affirmations that I shared, these are also helpful. महाराज ने आज ये जो 5 अलग अलग हमें ये जो जप एफर्मेशंस बताए, इनसे भी हमारा बहुत सहयोग हो सकता है ना ध्यान पूर्वक जप करने के लिए. So I'm putting the link to this presentation in the Zoom. I'm putting महाराज अत्यंत कृपा करके ये जपा अफर्मेशन की ये जो लिंक है वह महाराज ने भेज दी है जूम पर, तो भक्त इसको देख भी सकते हैं जप सत्र के बाद में भी. And you could print them out, you know. You could print them out. और यदि and आप put them चाहें on your तो wall. आप इसका प्रिंट निकाल करके और आप अपने दीवार पर भी लगा सकते हैं. There is a small book also, Maharaj, of the same in Hindi and English both, the Japa Acha. affirmation. Okay, good. Maybe you can put the link in the description. I think I got it from ISKCON Vrindavan. Not sure if online it's Okay. available or not. Okay, can you इसका can एक you पुस्तक translate? भी है, आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं. Yeah, Mahatma Prabhu has his book available online and also in Vrindavan. ऑनलाइन भी हो सकती है और ISKCON वृंदावन में भी मिलती है. तो और भी कहीं स्टोर पे रहती है ये, तो इसकी एक छोटा सा पुस्तिका है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं. Do we have time, But it's Maharaj? nice. It's With nice to many print hand it out. Nice to print it out and put it on your wall, no? Yes, Maharaj. So that every time we can see and feel the presence. तो महाराज Yes. कह रहे हैं यद्यपि पुस्तक भी है, लेकिन यदि हम इसका प्रिंट निकाल के और दीवार पर लगा दें तो उससे बहुत अधिक हेल्प हो सकती है, हमारी सहायता होगी. Okay. Should we take one more question? यस महाराज, ऐसे से. सो हम एक अंतिम प्रश्न लेते हैं नोएडा से संकर्षण अवतार प्रभु. हरे कृष्ण. यस, Hare Krishna Prabhu. एक मिनट. यस प्रभु जी, आप अब बोल सकते हैं प्रभु, अनम्यूट करके. हरे कृष्ण महाराज, सादर दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम. महाराज, my question is partially answered, but I have a little doubt remaining. As we say that we should not deviate our mind to anything else, so does that include that usually what I want to do, because my mind strays away, so what I want to do, I want to concentrate on looking at certain, let's say Brahma Samhita verses or say Venugeet, certain verses I look at and I try to concentrate upon that and then chant. So is that something okay, or is it also a deviation? So there's good, better, and best. तो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि
अभी हमने सुना कि हमारे जब हम जप करते हैं तब हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम जप कर रहे हैं तब हम कुछ श्लोक, चाहे वो ब्रह्म संहिता के हो या वेणु गीत से हो या और कुछ जो हमारे ऐसे श्लोक हैं नाम के विषय में, तो क्या हम उनके विषय में कुछ ऐसा चिंतन करते हुए जप करें, उनको पढ़ते हुए, उनको देखते हुए जप करें? तो क्या ये भी विचलन है या ये ठीक है, ये उचित है? So I've never heard of the acharyas recommending this process of reading shloks while chanting japa. I've never heard of any acharya recommending this. I have not heard तो of महाराज any बता रहे हैं acharya. कि मैंने अभी तक कभी किसी आचार्य को, यह आचार्यों द्वारा ऐसा नहीं कहीं कहा गया है, या ऐसा महाराज कह रहे हैं मैंने अभी तक नहीं सुना है कि हम इस प्रकार से कोई श्लोक पढ़ते हुए हम जप करें। But I have heard of many acharyas recommending we look at a very special shlok called Hare Krishna Mahamantra. जय। लेकिन महाराज कह रहे हैं मैंने कई आचार्यों से यह सुना है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हम एक श्लोक को देखते हुए जप करें, और वह है हरे कृष्ण महामंत्र। So sometimes devotees, they write out or print out the Hare Krishna Mahamantra and they read the mantra while they're chanting. और कई बार भक्त इस हरे कृष्ण महामंत्र जो लिखा रहता है, ये जो 16 अक्षर हैं, इनको प्रिंट निकाल लेंगे और अपने समक्ष रखेंगे, और उस नाम प्रभु को, हरे कृष्ण महामंत्र को देखते हुए वे जप करते हैं। So this process is recommended, reading the Hare Krishna Mahamantra. तो यह जो विधि है, इसकी अनुशंसा की जाती है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ते हुए जप करें। And our focus of attention should be like a torchlight, like a torchlight. और हमारा जो फोकस है वो इस प्रकार से हो जिस प्रकार एक बैटरी होती है, जो टॉर्च होती है, उसकी तरह। You know, we should be reading like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Focus like that. तो महाराज ने जैसा बताया, जिस प्रकार जब हम हरे कह रहे हैं तो हम हरे को देखें, जब कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण को। तो इस प्रकार जब हम महामंत्र पूरा जप कर रहे हैं तो हम एक एक नाम के ऊपर देखते हुए हम जप करें। Does that answer your question, Prabhu? Yes, Maharaj, he's muted again. Okay. Okay, very good. So let's stop here and thank you all for your kind attention this morning and joining us. Very grateful to all of you. Thank you so much, Shri Maharaj, Prabhupada ki Jai. for Hare your Krishna. association after really long. आज महाराज जी का संग सानिध्य हमें काफी समय बाद प्राप्त हुआ। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।